Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the analog and digital systems data acquisitions system. So now first we will see that what is the analog and digital system. As we know, the analog signals are the continuous signal and digital signals are the discrete signals. The major difference between the both of these are that the analog signals are the continuous signal and digital signals is the discrete in nature. Like it is the, we can see that it is the analog signal. Here we can see that is the continuous signal with the time, and here we can see it is the digital signal that is discrete in nature. Or we can also make the simplest sine wave as it is the analog signal, and discrete signal is the, this is the discrete signal. So in the many devices we use the analog devices, we use analog signals. Now what is the difference between these two signals? We will see like the analog signals and digital signals, how these signals are differentiated. So these are the continuous signal and digital signals are the discrete in nature, can be represented in sine wave, can be represented in the square wave as we have seen. Record sound wave as they are, जिस तरह से हम बोल रहे हैं तो हमारी साउंड वेव को एनालॉग फॉर्म में we can record it and convert into a binary form. These convert the our sound signal into the binary form, 0 1 form. Or these can be used only for the analog device, or these are used for the like computer, mobile or digital devices. Example like the human voice, natural sound, and analog current, voltage, these are the analog signals. And these are the computers, optical drives, and other electric devices, electronic devices, we use the digital signals. So there is the difference between the analog and digital signals. Now we see the what is the data acquisition system. So once we have converted the analog signal into the digital form, data acquisition is the process of digitizing data from the world around us to it can be displayed, analyzed and stored in a computer. तो डाटा एक्विजिशन जो हमारी टास्क है, दैट इज जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है उसको हम डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पर एनालिसिस करें, रिकॉर्ड करें, ऑब्जर्व करें. As we have the different type of the analog signal, like the different type of the physical variables in the industries, in the real world, like the temperature, pressure, flow. So these are monitored by the data acquisition system. इनको हम data acquisition system से monitor कर सकते हैं. Like the, we can see the important part of the data acquisition system are the sensor. First important part is the sensor is the important part. Second is the signal conditioning device, or third is the ADC and computer. So what is the sensor? It is also called the transducer. हम इसको transducer भी define करते हैं sensor को. तो transducer or sensor is a device that convert the any physical variable. हमारे पास physical variable बहुत सारे हो सकते हैं, like these are the temperature is the physical variable, pressure is the physical variable, flow is the physical variable, level is the physical variable. So in physical variables को if we are able to convert into the electrical measurable form, then that device is called the transducer. Because if we want to sustain operation on these variables, इनको monitor करना चाहें तो first सबसे पहले हमको इनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. To convert into the it into the electrical form, it is necessary that suitable transducer is used. Then after that we will use the signal conditioning. Signal conditioning, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वी कैन से सिग्नल को सुटेबल कंडीशन में लेकर आना, दैट इज कॉल्ड द सिग्नल कंडीशनिंग. सिग्नल प्लस कंडीशनिंग टू ब्रिंग द सिग्नल इनटू द सुटेबल कंडीशन, दैट इज द सिग्नल की कंडीशन को सुटेबल बनाना. अगर ओरिजिनल सिग्नल कैन हैव द नॉइज हो सकती है उसमें, दैट कैन बी नॉन लीनियर हो सकता है, एम्पलीट्यूड कम हो सकता है. तो ऑल कैन बी डन इन द सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस. Like the, we can amplify the signal,
इसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं किसी सिग्नल को, अगर वो ज़्यादा उसका कम एम्पलीट्यूड है, फिल्टर कर सकते हैं टू ब्रिंग इट इनटू द सुटेबल रेंज में लाने के लिए वी कैन डू द फिल्टरिंग इन द सिग्नल कंडीशनिंग, वी कैन डू द अटेनुएशन, अटेनुएशन इज द रिवर्स ऑफ द एम्पलीफिकेशन, अगर उसका हमें एम्पलीट्यूड कम करना है तो वी कैन डू द अटेनुएशन हम कर सकते हैं। लीनियराइजेशन, अगर हमारा सिग्नल लीनियर नहीं है तो इफ वी आर अप्लाइंग द लीनियराइजेशन स्कीम देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिग्नल कंडीशनिंग। तो ऑल दीज ब्लॉक्स कम इन द सिग्नल कंडीशनिंग। So it is not necessary that all blocks are applied in the all the devices, but according to the requirement हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वी विल अप्लाई द सुटेबल ब्लॉक, जो भी हमको अगर एम्पलीफाई करना है, फिल्टर करना है, अटेनुएट करना है, लीनियराइज करना है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वी कैन डू द सिग्नल कंडीशनिंग। नाउ द एडीसी, ADC is the analog to digital converter. Basically, this is the IC. This convert this analog signal because computer does not understand the this analog signal. Then ADC convert that into the digital form, or that can be monitored on this computer. तो these are the basic term जो हमारे डाटा विजन सिस्टम में हमारे यूज होती हैं। दैट इज ऑल्सो शोन हियर, यहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं कि फिजिकल फॉर्म हमारा सिग्नल्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, मोशन, फ्लो, ट्रांसड्यूसर इसको कन्वर्ट करता है, बट इन द नॉइजी सिग्नल, then filter and amplified signal in the signal conditioning device, then A to D converter, and then finally we computer use in the digital form on the bit form में कंप्यूटर इसको यूज करता है। तो दैट इज द basic of the data acquisition system. Now come to the नेक्स्ट थिंग इज द इफ जनरलाइज द सिस्टम। अभी जो हमने देखा ये हमने देखा कि दैट इज ओनली फॉर द वन वेरिएबल, अगर हमारे पास केवल एक वेरिएबल है उसके लिए हमने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया, बट इफ देयर इज मल्टीपल वेरिएबल सिग्नल, तो हम देर हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स हैं, तो हम इसको इस तरह का जनरलाइज्ड सिस्टम वी कैन यूज। Here we are using the one block multiplexer. तो multiplexer is a device that also known as a data selector. ये हमारा क्या करता है कि वन बाई वन एक एक सिग्नल को सेलेक्ट करेगा यहाँ पर और उसको डिजिटाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज द रोल ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर इज ए डिवाइस इन द इलेक्ट्रॉनिक्स that is a data selector or that select between the several analog or digital input signals and forward the selected input to a single output line. तो दैट इज द मल्टीप्लेक्सर। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया, ये हमारे पास चार इनपुट्स हैं यहाँ पर, इनके करस्पॉन्डिंग वी आर गेटिंग द वन आउटपुट। तो हमारा जो सेलेक्टर लाइंस हैं, दीज आर द सेलेक्टर लाइंस, तो इनके बेसिस पर इफ दीज आर द जीरो जीरो, यहाँ पर हमारे S0 और S1 की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमारी S000 तो वी आर गेटिंग द जीरो, यहाँ पर हमको फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे इस I0 को। इफ वी आर टेकिंग द दैट इज द 01 देन दैट विल बी इन द डिजिटल फॉर्म 1 होगा, तो वी विल सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करेंगे। अगर इन पर 10 होगा तो वी विल सेलेक्ट द सेकंड लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड लाइन सेलेक्ट हो जाएगी और 11 होगा तो वी कैन सेलेक्ट द थर्ड लाइन, दैट इज द मीन्स 3, और वी कैन सेलेक्ट दिस थर्ड लाइन। तो दैट इज द वे बाई वी कैन सेलेक्ट द डिफरेंट लाइन्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। now the data can be presented, how the data can be presented in the different way, either there can be three way of presenting the data, या तो हम इसको मेन बॉडी में टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करें या टेबल के फॉर्म में या बार ग्राफ और चार्ट के फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी डाटा को। लाइक अगर हमारा छोटा सेंटेंस है, सपोज देयर इज ए एग्जांपल, 80% ऑफ द मेल स्टूडेंट सेड दे रेगुलरली एट ब्रेकफास्ट कंपेयर टू द 60% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने ये दो डाटा, क्योंकि दो ही डाटा हैं, इनको सेंटेंस की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में वी हैव प्रेजेंटेड द दिस डाटा। बट अगर हमारे पास 3 डाटा है तो हम इसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास मल्टीपल डाटा होगा देन टेबुलर फॉर्म इज नेसेसरी, देन वी रिप्रेजेंट दैट डाटा इनटू द टेबुलर फॉर्म। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है कि हमने टेबुलर फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट किया है। हियर वी आर सेइंग द रीजन
एंड परसेंटेज एडल्ट्स टेकिंग ए हॉलीडे, कितने किस रीजन के कितने लोगों ने कितनी छुट्टियां ली पूरे ईयर में। बट इज द बैड वे बिकॉज हियर द टेबल लैक से टाइटल नहीं है, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से लिए वो हमने इसमें प्रेजेंट नहीं किया। तो बेटर वे कैन बी दिस, इसको हम बेटर वे मान सकते हैं यहाँ पर, रीजनल डिफरेंसेस इन द परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स टेकिंग ए हॉलीडे इन 1998, दैट इज द टाइटल इज गिवन और दैट इज द सोर्स इज गिवन, on that basis we represent the data in the tabular form. Simultaneously, graphs can be used. Graph good means है डिस्क्राइबिंग का, एक्सप्लोरिंग का डाटा, ये तीन तरह से लाइक बार चार्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बार चार्ट है, हियर वी आर टेकिंग द ग्रे ब्लैक रेड ब्लू व्हाइट कलर की कितनी कार पर्टिकुलर डे में चल रही है रोड पर, तो दैट इज डिनोटेड बाय द बार ग्राफ फॉर्म। बट दीज आर नॉट कंटिन्यूस फॉर्म, these are not in the continuous form. So if the data in the continuous form, then histograms is the another form. Like we can see here the histogram, here we can see the height of the pupil, so 139.5 to 149.5, that is the height of the how many pupils, ये frequency बता रहा है। Then after that continuously that second load through, then third, तो इस तरह से that a continuous manner में we can represent in histogram। तो histograms are a special form of bar chart। नाउ थर्ड वन इज द पाई चार्ट होते हैं हमारे। तो पाई चार्ट में हम इस तरह से डाटा को, जैसे व्हाट आर द डिफरेंट हॉबीज, दिस इज अ नाइस वे ऑफ डिस्प्लेइंग द डाटा। तो यहाँ पर हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट हॉबीज ऑफ द पीपल, लाइक वॉकिंग इज द 40% पीपल्स की हॉबी है, स्विमिंग, देन साइकिलिंग इज द हॉबी ऑफ द 24% पीपल्स, गोल्फ एंड अदर्स। तो इस तरह से वी कैन प्रेजेंट द डाटा इन द डिफरेंट वे में हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं।